आदरणीय अध्यक्ष महोदया, Member to take oath or affirmation. Secretary General, please proceed. Yes, madam. Ms. Alka Kumawat, who stands elected from Suratgarh constituency of Rajasthan, will now take oath or affirmation. Ms. Alka Kumawat. Madam, do you wish to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take oath? In English. I, Alka, having been elected as a member of Lok Sabha from the Suratgarh constituency of Rajasthan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Mr. Rajveer Shah, who stands elected from Rajkot constituency of Gujarat, will now take oath or affirmation. Mr. Rajveer Shah. Sir, do you wish to take oath or affirmation? In which language would you like to take oath? In Sanskrit. अहम राजवीर शाह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यद् अहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यद् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। Ms. Aarti, who stands elected from Nagpur constituency of Maharashtra, will now take oath or affirmation. Madam, do you wish to take oath or affirmation? Oath. In which language would you like to take oath? In Hindi. मैं सुश्री आरती, जो संसद की नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उस पद के कर्तव्यों के प्रति श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी।
सभागण, मुझे इस सभा में सुश्री लता मंगेशकर के निधन के बारे में बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। 28 सितंबर 1929 को उनका जन्म हुआ और 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हुआ। वह एक भारत की एक पार्श्व गायिका और सामयिक संगीतकार थी। भारत में महान गायकों के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाता है। 7 दशकों के उनके करियर में उन्हें मेलोडी की रानी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ मिलेनियम जैसे कई सम्मानित उपाधि दी गई। उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली वह दूसरी महिला गायिका थी। फ्रांस ने उन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार, नेशनल अवार्ड फॉर द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। 1974 में यूके के रॉबर्ट एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली वो पहली महिला गायिका थी। उनका अंतिम गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की 30 मार्च 2019 को सेना को श्रद्धांजलि के रूप में रिलीज किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन पर गहन शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुमुखी प्रतिभा की धनी स्वर कोकिला के संपर्क में आने का सौभाग्य मुझे मिला, जिन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। सुश्री लता मंगेशकर जी ने अपना पूरा जीवन देश और संगीत को समर्पित किया है। उनका योगदान लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अतुलनीय रहा है। धन्यवाद। It is with great sadness that I note passing of the great daughter of India, Lata Mangeshkar, internationally celebrated as a singer, composer, producer, and a cultural icon. Widely esteemed as one of the greatest and influential singers in India and indeed the world. This accomplished daughter of India was an exemplar of service to the people, including her contributions to the realm of politics when she was a member of Parliament in India from November 1999 to November 2005. May her voice and songs resonate to the heavens and live on in the soundtrack of our lives, enriching international lexicon of love, passion, and human spirit. May she rest in peace. I request the House to stand in silence to express our deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, madam. Prime Minister to introduce new ministers. महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने नए साथी मंत्रियों का सदन में परिचय करवाना चाहती हूँ। श्री खगेश कुमार, समाज कल्याण मंत्री। सुश्री महिमा गुप्ता, परिवार कल्याण मंत्री। Now the question hour commences. Question number 401 to Shri मानविका गहलोत. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है तथा सरकार की ओर से इस संदर्भ में क्या नई योजनाएं एवं प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं? Honorable Education Minister, please. Honorable Speaker, sir, in reference to first part of their question, the number of women enrollment for higher education in India has shot up. The number of women enrollment for higher education, which was less than 10%, has risen to
44.4% Goa with 61.2% top in terms of women enrollment, followed by Kerala. मैं सदन में बैठे अपने सभी साथियों को एक घटना की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जहाँ पहले मैं किसी पूर्वोत्तर के राज्य के किसी महिला या किसी नौजवान से मिलता तो उनका यही कथन होता था कि भारत सरकार वो तो हमें कब का ही भूल चुकी है, क्योंकि उनके पास ना तो शिक्षा थी ना ही रोजगार। परंतु आज पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय का वुमेन एनरोलमेंट रेशियो 51.8% है, जो यह दर्शाता है कि हमारी सरकार द्वारा स्थापित की गई नीतियां कारगर साबित होती है। एंड देन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन you can visit the ministry website, that is www.education.government.in। वैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा कंप्यूटर शिक्षा की नीतियाँ भी लागू की गई है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। As regarded the scheme introduces, first, the Department of Education in 1961-62 introduced National Merit Scholarship to those students who have low family income while they are pursuing higher education. This scheme is awarded on the basis of senior secondary result, out of which 82,000, 41,000 are for girls. Second, the Government of India recently announces postgraduate scholarship scheme for single girl child to support postgraduate examination. Thank you. क्वेश्चन नंबर 402 श्री आर्यन गगरानी। Honorable Speaker Madam, an eminent Hindi Daily recently reported the gift of fertilizer to the groom on the occasion of his marriage in Haryana. Will the Minister of Agriculture be pleased to state availability of fertilizer to farmers in Haryana for Rabi crop season of 2019 and 2020? If there is no shortage of fertilizer and there is no marketing of fertilizer, then why farmers of Haryana are agitated? ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मेरे साथी सदस्य ने एक बड़ा ही मजेदार वाक्य प्रस्तुत किया है, जिसके संदर्भ में मेरा उत्तर प्रस्तुत है। इस वर्ष 2019-20 के रबी के फसल की खाद उपलब्धता की स्थिति कुछ इस प्रकार है। यूरिया, जिसकी मांग हमारे देश में 17,196 मीट्रिक टन है, वहीं इसकी उपलब्धता 18,280 मीट्रिक टन है। वहीं बात अगर डीएपी की जाए तो इसकी मांग हमारे देश में 4,726 मीट्रिक टन है, वहीं इसकी उपलब्धता 4,726 मीट्रिक टन है। मंत्रालय की यह आंकड़े दर्शा रहे हैं कि इस तरह की कमी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्रालय की ओर से निर्देश के कारण खाद की आपूर्ति चरणों में यथाक्रम की जाती है और आजकल भारी कोहरे के चलते यातायात भी बाधित रहता है। कोई कालाबाजारी व जमाखोरी की रिपोर्ट भी नहीं की गई है, इसलिए बिना किसी जांच के कोई बात संसद में कहकर संसद का समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि किसानों को शिक्षा और सुविधा प्रदान करना ही हमारी सरकार की नीति है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 403 मिसेस प्रियांशी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। मेरा प्रश्न वित्त मंत्री जी से है। शिक्षा पर किए जाने वाला व्यय बढ़ाया जा रहा है, यह करीब 3% तक है, पर हमारा लक्ष्य 6% तक शिक्षा पर व्यय बढ़ाने का है। यह इस संदर्भ में आपकी क्या योजना है, इस पर प्रकाश डालें। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। महोदया, आपके माध्यम से मैं अपने मित्र को ये बताना चाहती हूँ कि भारत पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते सरकार पर काफी अधिक भार है। जैसे ही इस स्थिति में सुधार आएगा, सरकार की योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ही है और सरकार जरूरी सुविधा मुहैया करवाएगी। मैं आपको बता दूं, सरकार द्वारा नए केंद्रीय विद्यालय खुलवाए जा रहे हैं और उन्हें अतिरिक्त सुविधा देने की भी मांग की जा रही है। राज्यों से भी मांग जारी की गई है ताकि
शिक्षा व्यवस्था में और अधिक सुधार किया जा सके। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सुश्री तनुश्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर देने के लिए। मैं हमारे वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी कि सरकार द्वारा मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में खर्च होने वाले व्यय में 45% तक कम किया गया है। इसका उद्देश्य प्रकट करने का कष्ट करें। धन्यवाद। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। सरकार द्वारा मेडिकल एंड पब्लिक पर खर्च कम किए जाने का कारण ये है कि अब तक कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य काफी हद तक पूरा हो ही चुका है और अब वैक्सीनेशन का कार्य थोड़ा ही बचा है। अतः इस पर होने वाला व्यय कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इस बार सरकार ने मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में भी कार्य योजना बनाई है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जारी किया गया है, जिसके अंदर 23 से ज्यादा टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय समाज में बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है और पैंडेमिक के दौरान लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा है। घरों के अंदर क्वारंटाइन रहे हैं। WHO के अनुसार 4 में से 1 परिवार के अंदर ऐसा सदस्य होता ही है जिसे कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ऐसे केसेस में परिवार और दोस्तों से बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है। इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर कदम उठा रही है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 404 मिसेस तनु। Honorable Speaker, ma'am, will the Minister of Communication be pleased to state whether the government has received any representation from telecom service providers regarding insufficient spectrum being the reason for poor telecom services in the country? If so, the details thereof, the reaction of the government thereon, and the steps taken by the government to allocate more spectrum to the telecom companies. Thank you. Honorable Communication Minister. Honorable Speaker, ma'am, the Cellular Operators Association of India, COAI, had sent a communication in October 2020 mentioning the need to make spectrum available in various bands, to set spectrum available in various bands to meet the increasing data requirement and quality of service expectations of subscribers. The department has conducted spectrum available in 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz and 2500 MHz bands in October 2021. A total of 2,354.75 MHz of spectrum in these bands was put to auction, out of which 964.8 MHz put to auction. Further, the government has also permitted various cases for spectrum sharing and spectrum trading among telecom service providers as per the guidelines issued by the government in this regard. Nowadays, government also provided 5G network to solve the various problems of networks. Thank you. Question number 405 Shri Preet Thakur. माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदियाँ हमारी प्यास बुझाती है और नदियों को हम पूजते भी हैं, लेकिन नदियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अनियोजित शहरीकरण के कारण नदी के किनारों पर अशोषित जल की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। इससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। नदी का पानी पीने के लिए शहरों में जाता है। अगर वह साफ नहीं होगा तो कितना नुकसान हो सकता है, यह हम सभी जानते हैं। मैं मुख्य रूप से जल संसाधन विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी कि नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। धन्यवाद। माननीय जल संसाधन विकास मंत्री। आदरणीय सभापति महोदया, मैं मेरे उत्तर की शुरुआत करना चाहूँगी 2 पंक्तियों से, जो कि कुछ इस प्रकार है।
रही मन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गई न ऊबरे, मोती मानुष चून रही माँ, मोती मानुष चून। मेरे साथी सांसद ने जो मुद्दा उठाया है वो वास्तव में चिंताजनक है, लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। इसे स्पष्ट करने हेतु मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं और उनमें हमें सफलता भी मिल रही है। जैसा कि मंत्री जी ने पूछा कि नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, तो इसे स्पष्ट करते हुए मैं आपकी दृष्टि को ले जाना चाहूंगी गंगा नदी की ओर, जो कि हमारे देश की मुख्य नदियों में से एक है। तो इसे सुरक्षित एवं साफ रखने के लिए हमारी सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में, राष्ट्रीय गंगा 2016 में, गंगा क्वेस्ट 2021 में। इसके अलावा अन्य नदियों को भी साफ कराने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है और आगे भी करेगी। धन्यवाद महोदया। क्वेश्चन नंबर 406, मिसेस साक्षी राज। Honorable Speaker, ma'am, will the Ministry of Railway be pleased to state whether any special plan is in the offing to upgrade the standard of railway stations, the steps being taken to improve the hygiene and cleanliness on the railway stations, whether the water supplied at most of the stations contain large quantity of harmful bacteria, and if so, the steps being taken in this regard. Thank you. Papers to be laid on the table by Minister of Railway to lay a copy of notifications and annual report for the year 2021 and 22. Madam, paper would be laid on the table. Secretary General to report message from Upper Chamber of Youth Parliament. Madam, I have to report the following messages received from the Upper Chamber of Youth Parliament. In accordance with the provision of rules and procedure and conduct of business in Upper House of Youth Parliament, directed to enclose a copy of Prevention of Crime in the Name of Honor and Tradition Bill 2010, which has been passed by the Upper Chamber at its sitting held on 5th January 2015. Secretary General to lay on the table a copy of the bill as passed by the Upper Chamber. I lay on the table of the House the Prevention of Crime in the Name of Honor in Tradition Bill 2010 as passed by the Upper Chamber. Honorable members, I have to make an announcement on my behalf and on the behalf of honorable members of the House. I have great pleasure in extending our warm welcome to delegation consisting of Constituent Assembly of Nepal, who are on a tour to India as our honored guests. The honorable members of delegation are Speaker Ms. Ritu Koirala, Deputy Speaker Mrs. Garima Nanolia, Deputy Speaker Ms. Rishika Khandal, and Ambassador Mr. Nikhil. Now, let us take up the calling attention. I invite Mr. Jasveer Singh to call the attention of Minister of Information and Broadcasting to the unprecedented resignation of members of Central Board of Film Certification, citing towards bureaucratic interference, corruption and corruption. Mr. Jasveer Singh. Honorable Speaker, Madam, I would like to call the attention of the Minister of Information and Broadcasting to a dramatic development in which Central Board of Film Certification Chief and 8 other members quit citing political interference.
End question. The chief has stated total interference on every film, big and small. In the present instance, the chief alleged pressure religious groups on a film by a religious leader. The Constitution of India guarantees freedom of speech and expression under Article 19(1)(a), and the board is an independent, autonomous statutory body incorporated under the law made by the Parliament. Then why such fundamental right is violated by any kind of political pressure and the alleged coercion? संसद की गरिमा बनाए रखें. I invite Ms. Pratha Gill to call the attention of Minister of Labour. Ms. Pratha Gill. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले के अखबार में प्रमुखता से देश में बढ़ती बेरोजगारी पर खबर छपी थी. अतः आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या श्रम मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का संगठित क्षेत्र में रोजगार तलाशने के बजाय शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार कार्यालयों में प्रकोष्ठ शुरू करने का विचार है, और यदि हाँ तो क्यों? तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? माननीय श्रम मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे साथी सांसद को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. हमारे भारत देश में सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आदि. हम बात करें भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम श्रम रोजगार सृजन कार्यक्रम, इस योजना के माध्यम से सरकार हर साल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है. इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है. इसी तरह सरकार हर संभव प्रयास करती है जिससे अधिक से अधिक युवक और युवतियां इसका लाभ उठा सकें. इसलिए विपक्ष दल का ये कहना अनुचित है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि सरकार हर संभव यही प्रयास करती है कि देश का हर युवा और युवती को रोजगार प्राप्त हो सके. इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.labor.government.in पर भी देख सकते हैं. धन्यवाद. Now, let us take up a motion on communicable and non-communicable disease by Leader of Opposition for a debate in the House. Leader of Opposition, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है. मैं बात कर रही हूँ संचारी एवं गैर संचारी बीमारियों की. WHO की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से 30 लाख, मोटापे से 15 लाख एवं मधुमेह से 16 लाख लोगों की मृत्यु होती है. वैसे तो हमारी सरकार भारत देश की तुलना कई बड़े देशों से करती है, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में इसका तुलनात्मक अध्ययन क्यों नहीं किया जाता? भारत में 60% से ज्यादा मौतों का कारण संचारी एवं गैर संचारी बीमारियां हैं और 55% अकाल मृत्यु होती है. भारत में संचारी एवं गैर संचारी बीमारियों के बढ़ने का एक और कारण है कि हमारे पास सही अनुपात में संसाधन उपलब्ध नहीं है, और संसाधन उपलब्ध न होने के कारण किसी भी व्यक्ति को बचाना असंभव सा लगने लगता है. आपके ही द्वारा एक योजना चलाई गई है, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत. भारत में कुल 1206 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 12 लाख है, और अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 96% या इससे भी अधिक है. लेकिन आपका लक्ष्य केवल उन 12 लाख छात्रों तक सीमित है, जो आंकड़ा बहुत ही कम है, क्योंकि स्वस्थ रहना न हर बच्चे का अपितु हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है. मैं याद दिलाना चाहूंगी कि स्वास्थ्य के विपरीत आपके ही शासनकाल में शराब और तंबाकू की बिक्री बढ़ी है. संसद की गरिमा बनाए रखें. जिसके कारण एक पुत्र अपने पिता को खो देता है और एक बेटा अपनी मां की गोद में दम तोड़ देता है.
राजनीति शास्त्र विशेषज्ञ चाणक्य जी का एक श्लोक याद आता है मुझे। वे कहते हैं, अधिक्ये दंती यथा शास्त्रम नारो जानाति सत्यमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याणि कार्य शुभाशुभम। अर्थात राजनीति शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन कर कोई व्यक्ति यह जान सकता है कि किस कार्य को करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे और किससे बुरे। लेकिन ये सरकार तो अच्छा करना ही नहीं चाह रही है, इसलिए ही तो स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। इसलिए संचारी एवं गैर संचारी बीमारियां केवल एक खतरा मात्र नहीं है, इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र ने विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिसके अंतर्गत संचारी एवं गैर संचारी बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर को कम करने की प्रतिबद्धता जताई गई। क्या आपने ऐसी कोई रणनीति अपनाई? नहीं, कतई नहीं। इसलिए मैं आशा करती हूँ, क्योंकि ये एक खतरा मात्र ही नहीं, एक आर्थिक नुकसान भी बहुत पहुंचाता है, इसलिए मैं आशा करती हूँ कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जाएंगे और भारत देश की जनता के साथ न्याय किया जाएगा। धन्यवाद। Mrs. Anmol. Madam, through you, I would like to tell the House that India is the second highest population in the world with more than 1.3 billion people. And the International Federation estimated that more than 72.9 million adults are suffering from diabetes in India. This data rose from 40.9 million in 2007 to 70.9 million in 2021. Also, it has been estimated that this data would be 124.8 million in 2045. So, will the opposition tell me why these cases are increasing and what is government's future plan for the stoppage of this disease? Thank you. Ms. Samriddhi Bharadwaj. माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मेरे साथी ने गैर संचारी बीमारियों के बारे में बताया, जो कि वास्तव में एक गंभीर समस्या है, परंतु इसी के साथ मैं सभा का ध्यान सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की तरफ भी खींचना चाहूंगी, जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। इसी के साथ मैं कैंसर जैसी भयावह बीमारी की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इसकी संबंधी रोकथाम की जानकारी भी लेना चाहूंगी। धन्यवाद। Ms. Kumkum Sharma. Honorable ma'am, as nowadays heart attacks are very common in our country, and in today's time, every third person has diseases related to heart. It is found that per year, nearly 3 million people are died due to heart attack, and by going through the data, lots of cases are still hidden. The incidences of heart-related disease are rising in India by 36% over the last 24 years. It is time to get aware of the serious issue and take necessary steps to reduce the burden of heart-related disease in the country. Madam, I would like to know from the ministers that what steps government had taken to control heart disease. Thank you. Ms. Divya. Honorable Speaker, ma'am, I also want to add some information and facts about non-communicable disease. Non-communicable disease, NCDs, kill 41 million people each year, equivalent to 71% of all deaths globally. Each year, more than 15 million people die from NCD between the age of 30 and 69. 85% of premature deaths are low and middle income countries. 77% of deaths are low and middle income countries. The heart disease amount of most NCD deaths are 17.9 million people annually. Thank you. आज की युवा संसद सभा कल 11 बजे तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि विपक्ष की हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन यहाँ विपक्ष की भूमिका बहुत ही असहयोगपूर्ण है। हम भी विपक्ष में थे और हमने हमेशा से ही सत्ता पक्ष का सहयोग किया है, अतः हम यही अपेक्षा रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष के साथी हमारे समक्ष खड़े हैं, मैं उन्हें यह विश्वास दिलाती हूं कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और इन फैलती हुई गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम पर कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदया,
राज्य में प्राइवेट व गवर्नमेंट अस्पतालों में 50 लाख रुपए निःशुल्क तक का उपचार उपलब्ध है। वह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सामान्य बीमारी 50,000 रुपए व गंभीर बीमारी 4.50 लाख रुपए निःशुल्क तक का उपचार उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत बीमारियों में 1676 प्रकार के पैकेज व प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। इन गंभीर बीमारियों में कोविड-19, ब्लैक फंगस, कैंसर, हार्ट डिजीज, न्यूरो डिजीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रोगियों को विशेष सुविधा मिलेगी व इसके तहत सबसे पहला फोकस डायबिटीज रोगियों पर किया जाएगा। स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2021 के अनुसार भारत में 62.4% डायबिटीज रोगी है और अभी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इसे काबू करने के लिए भारत सरकार ने NPCDCS कार्यक्रम लागू किया है और योजना को मंजूरी मिली तो कैंसर रोगियों का समुचित इलाज मिलेगा। धन्यवाद। आज की युवा संसद सभा कल 11 बजे तक स्थगित की जाती है। वंदे मातरम।